Dear students, in continuity of chapter number 1 of class 12th physics subject, today we will discuss about our next MCQs. These MCQs are based on understanding, and the MCQ number 21, which is flashing on your screen, it is the if the charge density of a charge be sigma and electric field near the surface would be. So dear students, here first of all we will apply the formula of electric field, which is 1 by 4 pi epsilon naught charge q upon the r distance, okay, r square. Fine. So according to surface charge density, we know that surface charge density is charge per unit area. Okay, so here the charge will be equal to sigma into area. Since the conductor is spherical, we will apply here the area is equal to 4 pi r square. Now when we put these values in the above formula, we will get 1 by 4 pi epsilon naught q की जगह यहाँ पे आ जाएगा sigma into r 4 pi r square, okay, and divide by r square. This r square will be cancelled by this r square, and 4 pi will be cancelled by 4 pi. Therefore we will get sigma upon epsilon naught. You can see here this electric field expression is independent of r. So if we increase this r by 2r, then the formula will be remain same, and the option number B is the right answer of this question. Next MCQ is a hollow sphere of charge does not produce an electric field at any interior point, outer point, surface point, or none of these. Now in order to understand this MCQ, let us consider a charged hollow sphere with charge q, okay, like this. Consider this is a hollow sphere and q is the charge over here. This charge is on the surface of this sphere. Now we have to calculate the electric field intensity at an interior point. Let the P be the interior point, and this P interior point is at r distance from the center of this hollow sphere, and make the Gaussian surface here, which is enclosed by the charge q dash here. Okay, now according to Gauss theorem, we know that according to Gauss theorem, here E cross 4 pi r square is will be equal to q dash upon epsilon naught, where q dash is the charge enclosed by this Gaussian surface. Okay, and since it is a hollow sphere, therefore the charge enclosed by this hollow sphere inside this hollow conductor will be equal to 0. So this whole expression will be equal to 0. Here 4 pi r square cannot be 0. Okay, therefore the E would be equal to 0 here. Means the electric field intensity at interior point of the hollow conductor is always 0. So the answer of this question is A. फाइन. आगे बच्चे नेक्स्ट हमारा MCQ है द कैपेसिटी ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कंडेंसर वेरीज डायरेक्टली विद nth पावर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स. द वैल्यू ऑफ n हियर इन ऑप्शंस में बताना है बच्चे. ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन राइट आंसर है. बच्चों हमें पता है कैपेसिटेंस जो का फार्मूला क्या होता है. कैपेसिटेंस इज इक्वल टू A इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय D, वेयर A जो होता है ये एरिया होता है, एप्सिलॉन एक कांस्टेंट है, और ये D जो है सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स है. ठीक है, अब यहाँ पे पावर हमने बतानी है. हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस है वो यहाँ से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D वेरी कर रही है. ठीक है, इट मीन्स C इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D रेज टू पावर -1. ठीक है, तो यहाँ से n की वैल्यू बच्चे -1 आ रही है. इट मीन्स इसका आंसर जो है वो C ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट MCQ है ए मेटल फॉयल ऑफ निग्लिजिबल थिकनेस इज इंट्रोड्यूस्ड. बच्चे निग्लिजिबल थिकनेस है जिसको हमने इंट्रोड्यूस किया है बिटवीन दी टू प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर एट ए सेंटर. द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर वुड बी विल बी. ये कैपेसिटेंस कितनी होगी डियर स्टूडेंट्स. हम सबसे पहले तो आपको कैपेसिटेंस का फार्मूला पता होना चाहिए. एक्सप्रेशन जब हम T थिकनेस की कोई स्लैब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिटवीन दी कैपेसिटर. ठीक है, तो यहाँ पे जो स्लैब है वो अकॉर्डिंग टू दैट स्लैब जो कैपेसिटेंस है उसका फार्मूला बच्चे रहता है D माइनस टी प्लस T बाई के. ठीक है, ये बच्चों ये एक्सप्रेशन है हमने ड्राइव किया होगा. ठीक है, आप लोगों ने ड्राइव किया होगा.
ठीक है। सो यहाँ पे बच्चे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि निग्लिजिबल थिकनेस है तो t इज इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। अगर t 0 आएगा तो ये सारा t d माइनस t की वैल्यू जो है वो कितनी d के इक्वल हो जाएगी, और t बाय k ये भी बच्चे 0 हो जाए, ये भी क्या है 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या रह जाएगा, a इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाय d। सो द कैपेसिटेंस जो है वो सेम रहेगी जो कि एक कैपेसिटर की होती है। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस जो है कैपेसिटर की वो चेंज नहीं करेगी, इट वुड बी सेम। आगे बच्चे क्वेश्चन नंबर 25 है, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज थ्रू ए डिस्टेंस x मीटर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बच्चों इक्विपोटेंशियल सरफेस का आई थिंक मतलब सभी को पता होगा, हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ सरफेस वेयर पोटेंशियल रिमेन सेम, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है सेम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे ए पॉइंट और बी पॉइंट सपोज मान लीजिए, यहाँ पे उनका पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा, क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। देयरफॉर जो वर्क डन रहेगा यहाँ पे वो भी कितना आ जाएगा बच्चे, दैट विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन। आगे बच्चे 26, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P and electric field strength with dipole in stable equilibrium, in stable equilibrium। सो बच्चे ये भी अंडरस्टैंडिंग MCQ हो गया कि डाइपोल जो स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है उसके ऊपर टॉर्क बच्चे 0 रहती है, और हमें पता है टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, टॉर्क इज इक्वल टू P क्रॉस E, ठीक है। यहाँ पे अगर टॉर्क बच्चे 0 रहेगी, इट मीन्स P क्रॉस E वुड बी इक्वल टू 0 हेयर, ठीक है। और बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट होने के कारण दोनों में बच्चे एंगल आ जाएगा कौन सा, साइन थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा एंगल 0, साइन थीटा एंगल आ जाएगा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, क्योंकि P और E जो है ये तो 0 हो नहीं सकते, इसका मतलब साइन थीटा ही 0 की इक्वल होगा। और साइन थीटा 0 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 0 आती है, ठीक है। तो इसका मतलब डाइपोल जो है इक्विलिब्रियम स्टेबल स्टेट में कौन से एंगल पे होगा, जब इन दोनों में एंगल आ जाएगा कितना, 0 डिग्री, ओके। आगे बच्चे बढ़ते हैं, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू इट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। इक्वेटोरियल लाइन पे बच्चे, इक्वेटोरियल लाइन पे दोनों के बीच में एंगल जो है वो 180 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। आगे है बच्चे नेक्स्ट 28th न्यूमेरिकल, इफ R1 एंड R2 बी द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P1 एंड P2 from the given charges, E1 and E2 are the respective intensities of electric field of these points। तो बच्चे सबसे पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 का एक्सप्रेशन लिखते हैं, वो किसकी इक्वल आएगा, रेशियो बतानी है हमने, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R1 स्क्वायर। यहाँ पे E2 क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा R2 का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों की रेशो लेनी है, तो रेशो बच्चों, रेशो में क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, चार्ज सेम है तो ये दोनों Q भी यहाँ पे कट रहे हैं, ठीक है। और R2 का होल स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा, R1 का होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा, ठीक है। इट मीन्स E1 अपॉन E2 जो है वो किसके इक्वल आ गया, R2 स्क्वायर और डिवाइड बाय R1 स्क्वायर, ठीक है। सो ये ऑप्शन आ रही है बी। नेक्स्ट बच्चे 29th MCQ है, इफ ए बॉडी रिमेन कंटेन N1 प्रोटोन एंड N2 इलेक्ट्रॉन्स देन द टोटल चार्ज ऑन द बॉडी वुड बी। बच्चे यहाँ पे N1 प्रोटोन है, प्रोटोन के ऊपर चार्ज मान लीजिए E है, ठीक है। और साथ में बच्चे N2 इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर चार्ज जो है वो क्या होगा, वो माइनस में E होगा, ठीक है। इक्वल चार्ज होता है बट विद ऑपोजिट साइन। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, टोटल चार्ज निकालना है, तो बच्चे यहाँ पे N1 माइनस N2 इंटू E जो है फार्मूला आ जाएगा, ठीक है। N1 माइनस N2 E, बी ऑप्शन। आगे बच्चे 30th MCQ, द टू चार्जेस आर प्लेस्ड इन ए सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट इन एयर, if the glass slab is introduced between them the force between them will be, फोर्स बच्चे कितनी चेंज करेगी। सो बच्चे हमें पता है, अगर हम यहाँ पे वैक्यूम मान लेते हैं तो कूलम फोर्स का फार्मूला क्या आता है, टू चार्जेस में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। सपोज आपने इसको किसी मीडियम में रख दिया और मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पे K है, तो इसमें बच्चे जो एप्सिलॉन नॉट की जगह यहाँ पे आ जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है। Q1 इंटू Q2 डिवाइड बाय
आर स्केयर, ठीक है। और बच्चे ये एप्सिलॉन की वैल्यू, इसकी वैल्यू कितनी होगी, हमें पता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, वो होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इट मीन्स यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन वुड बी इक्वल टू के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दीजिए, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्केयर। तो यहाँ पे जो के है ये एक एक्स्ट्रा फैक्टर आ गया रेसिप्रोकल में, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे फोर्स जो है के टाइम्स रिड्यूस कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन। ओके, सो दीज आर दी क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग बेस्ड आज हमने कही हैं, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।